dear friends, I Dharmendra Soni welcome you to my YouTube channel PDS Classes. Today in this video we are going to discuss the first chapter of Geography, Resources and Development. But before moving forward, I request you to please subscribe my channel and like my videos. In this module, we are going to discuss the following things. At first, we will discuss the definition. Then we will talk about the classification of resources on various bases. We will also discuss the problems that arise due to overutilization of resources. रिसोर्सेज का जब दुरुपयोग होता है और ओवर यूटिलाइजेशन होता है तो उनसे क्या क्या समस्याएं आती हैं. We will discuss the need of resource planning as well as the step of resource planning. Dear friends, these 4 points will be discussed in our first video. Later, we will discuss about the land resources, the land use pattern in India, the causes of land degradation and the way to conserve land. And the last, we will talk about the types of soil in India and the soil erosion and the way to stop them. At first, a question rises to our mind. What is a resource? Resource hota kya hai? Generally, in lower classes, you have gone through one point that anything that has utility is considered a resource. वह चीज जिसकी कोई ना कोई यूटिलिटी हो और यूज हो उसे रिसोर्स कहते हैं. बट इन क्लास 10 इट इज क्वाइट डिफरेंट. लेट्स सी व्हाट इज अ रिसोर्स. डेफिनेशन: everything that is available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resource. You have to remember this particular definition. It comes in exam as 1 mark question. The other thing, the aspect of this definition are everything that is available in our environment. The first condition or a condition that it must be available in our environment. Second, it must be available to satisfy our need. This is B point. The condition is that whatever the resources are, they should be technologically accessible. आपके पास वैसी टेक्नोलॉजी हो कि आप उन तक पहुंच सके. D point says that it should be economically feasible. यहाँ पर जो एक वर्ड निकलता है feasible, इसका मतलब निकलता है you should be capable of affording it. मान लीजिए अगर आयरन ओर निकलता है मगर उसकी कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन अगर मार्केट प्राइस से ज्यादा है, then we can say it will not be economically feasible for us. That cannot be termed as a resource in that condition. And the last point is that the resource must be culturally acceptable. कई ऐसी चीज़ें होती है जो हमारी कल्चर में हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो फिर वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं होगी. तो वंस अगेन हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो, हमारी नीड को सेटिस्फाई कर पाए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए. इफ ऑल दीज थिंग्स आर देयर देन वी कैन कंसीडर दैट these things are resources. Now in the next slides we are going to discuss the classification of resources on various bases which will form your 1 mark to 3 marks question. Classification of resources on various bases. The first thing is origin. Origin word का हिंदी में मतलब निकलता है उत्पत्ति. कोई रिसोर्स कैसे पैदा हुआ
that is known as origin. It is biotic and abiotic. Exhaustibility. Exhaustibility का मतलब होता है whether a particular resource will end or not. अगर वो end नहीं होगा तो वो renewable है, और अगर वो खत्म हो जाएगा then it is non-renewable. Ownership. Ownership का मतलब होता है who owns them. उनका मालिक कौन है. इसके बेसिस पे उसके 4 पार्ट है: individual resource, community resource, national resource, and the fourth one is international resource. On the status of development, the resources can also be classified into 4 parts: potential, developed, stock, और स्टॉक का ही सबसेट निकलेगा वो है रिजर्व रिसोर्स. तो कोई रिसोर्स कितना डेवलप है उसके बेसिस पे हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. तो डियर फ्रेंड्स, ये ओरिजिन पर आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी हैं. ये 1 मार्क टू 3 मार्क्स के क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं आपके एग्जामिनेशंस में. लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. फर्स्ट वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन वर्ड का मतलब निकलता है उत्पत्ति, पैदा होना. द फर्स्ट टाइप इज बायोटिक रिसोर्स. बायो वर्ड आपने सुना होगा, ये एक साइंस का पार्ट है. बायो का मतलब होता है लाइफ. All those resources which have life in them are termed as biotic resource and they are obtained from living organisms. ये याद रखना है आपको. Now the examples of biotic resources are forests, wildlife, plants, fisheries, livestock and human beings. They are biotic resources. Now there are abiotic resources. Abio का मतलब निकलेगा जिसमें लाइफ न हो बट जो लाइफ को सपोर्ट करे. So all those resources without whose support biotic resources cannot survive are known as abiotic resource. Friends, you cannot write that a plastic chair is a abiotic resource. No, it is completely wrong. Let us see what is its definition. Resources which are obtained from non-living things are considered as abiotic resources. Examples are rocks and metals. All the rocks and metals, whether they are metallic or non-metallic, they are abiotic resources. We depend on sunlight, air and water. They all support us to lead our life. That's why they are considered as abiotic resources. So it is basically classification on the basis of origin. Resources on the basis of exhaustibility. Exhaust word का मतलब निकलता है end हो जाना और खत्म हो जाना. क्या वो end होंगे? अगर end होंगे तो नॉन रिन्यूएबल है, और end नहीं होंगे तो वो रिन्यूएबल है. The first type is renewable resource. The resources which can be used without the fear of exhaustion. यहाँ पे जो वर्ड है exhaustion, exhaustion वर्ड का मतलब होता है समाप्त होना या एंड होना, जिन्हें हम यूज करते रहें और हमें कोई डर नहीं है कि वो कभी खत्म हो जाएंगे. They are renewable resource. They are also called inexhaustible resource. जो कभी समाप्त न हो, तो ये उनका दूसरा नाम है. अगर आपको रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाए या इनएग्जॉस्टिबल कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही निकलता है. दे कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड. ये अगर खत्म भी हो जाएं तो बाय एनी फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस ये ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाते हैं. दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्स. Suppose a simple example I can tell, wind is a renewable resource. Example is sunlight, wind and water. Now dear friends, the renewable resources are also further classified into 2 parts. ये आपको याद रखना है because it will again form your 1 mark question.
तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के दो टाइप कौन से हैं ये आपको याद रखना है, और वो दो टाइप हैं। द फर्स्ट इज कंटिन्यूअस और फ्लो एंड द सेकंड इज बायोलॉजिकल। वह रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको हम लगातार यूज कर सके 24 आवर्स, वो कहलाता है आपका कंटिन्यूअस और फ्लो, विंड और वाटर। वो रिन्यूएबल रिसोर्स जो बायोलॉजिकल हो, लाइफ से जुड़े हुए हो, वो फॉरेस्ट कहलाते हैं। आपको पता है कि अगर अपन फॉरेस्ट एरिया को कट कर ले, कट करने के बाद में इफ वी लीव दैट एरिया फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, देन द फॉरेस्ट विल ऑटोमेटिकली ग्रो देयर। दैट्स वाई फॉरेस्ट बायोलॉजिकल तो है ही है, लेकिन बायोलॉजिकल होने के साथ साथ वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं, ये आपको याद रखना है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच विल एंड विथ यूज। हम उन्हें यूज करते जा रहे हैं और एक दिन वो समाप्त हो जाएंगे। They are exhaustible resource। एग्जॉस्ट वर्ड का मतलब होता है समाप्त होना। They cannot be recovered with any process। In renewable resource, you have talked that renewable can be renewed with physical, chemical or mechanical process. But dear friends, these non-renewable resources cannot be renewed by any process. Example is fossil fuels like coal and petroleum. Now many times the students ask questions to their teachers. Okay, sir, coal and petroleum are formed by the decomposition of plants and other animals. तो क्या वो वापस एक दिन रीन्यू हो सकते हैं क्या? फ्रेंड्स, इनको रीन्यू होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, हजारों साल लगेंगे, एंड यू आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। दैट्स व्हाई वी कॉल देम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दे आर रिसाइक्लेबल, जिनको हम रिसाइकल कर सके। जनरली हम देखते हैं जितने भी मेटल्स हैं लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये एक बार धरती से खत्म हो गए तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, पर अगर हम इन्हें रिसाइकल करते रहें तो इनका यूज वापस होता रहेगा। देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज विच आर नॉन रिसाइक्लेबल। जैसे सिंपली बात करते हैं हम फॉसिल फ्यूल की। फॉसिल फ्यूल अगर एक बार खत्म हो गया तो वह रिन्यू नहीं होगा, और अगर आप सोचते हो होगा तो उस टाइम तक आई थिंक दैट यू आर नॉट एबल टू वेट इट। सो सब कैटेगरीज भी आपको याद रखनी है। डियर फ्रेंड्स, वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू, इन बोर्ड एग्जामिनेशन many times this question comes in the form of long answer type question up to 5 marks। आपको इसके सारे पॉइंट्स याद रखने हैं और इस क्लासिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल के साथ सब क्लासिफिकेशन भी याद रखना है। Now we talk about the resources on the basis of ownership। Ownership का सिंपली मीनिंग निकलता है आपके पास जो रिसोर्सेज है उसका मालिक कौन है और ऑनर कौन है। The first category in this context is individual resource। Resources that are owned by individuals। कोई भी एक व्यक्ति के अंडर में जो रिसोर्सेज हैं वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं। Examples like your farmhouse, your residential plot, if you have a plantation area, your household goods are there, private land is there, orchard it means fruit garden is there। अगर ये आपके पास है और आप खुद इसके मालिक हैं then it is individual resource। Now the second is community resource। The resources which are owned by community in common।
इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये रिसोर्सेज कॉमनली यूज किए जाते हैं बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, इसीलिए हम इन्हें कम्युनिटी रिसोर्सेज भी कहते हैं। एग्जांपल्स हैं द रिसोर्सेज व्हिच आर एक्सेसिबल टू होल कम्युनिटी इन कॉमन इन अ स्पेसिफाइड एरिया आर कॉल्ड कम्युनिटी रिसोर्सेज। नाउ द एग्जांपल आर विलेज पॉन्ड। गांव में अगर एक तालाब है या गांव में अगर कोई कुआं भी है तो ऑल द पीपल और the people of a particular community are going to utilize it. इसका कोई एक मालिक नहीं है, ग्रुप में पीपल उसको यूज करते हैं, that's why it is community resource. The local public park आपके एरिया में जो भी है वो भी एक तरीके का community resource है। The third part is national resource. वैसे तो हम देखें तो सारे रिसोर्सेज जो इंडिया की या किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री में है वो उस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ए पॉइंट सेज टेक्निकली ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। द कंट्री हैज लीगल पावर टू अक्वायर देम इवन योर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक गुड। इसको सिंपली समझिए, जब भी नेशनल हाईवेज या रोड्स बनाए जाते हैं एट दैट टाइम द गवर्नमेंट अक्वायर द हाउसेज और द एग्रीकल्चरल फील्ड्स। ये जो एक्वायर किए जाते हैं क्योंकि ये देश के भले के लिए यूज किए जा रहे हैं, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट कैन यूज देम। तो ऐसे तो सारे रिसोर्सेज नेशनली हैं, बट फिर भी इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। ऑल द मिनरल्स that are under the earth, the water resources in the rivers, dam, forest, wildlife, land within the political boundary of our country, and the oceanic area up to 12 nautical mile. Nautical mile distance को मेजर करने की एक यूनिट है। ये क्वेश्चन अगेन आपका 1 मार्क का पूछा जाता है। अप टू व्हाट डिस्टेंस द रिसोर्सेज आर नेशनल। तो आपको याद रखना है कि अपने कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल माइल्स तक की डिस्टेंस में जितने भी रिसोर्सेज आते हैं वो हमारा टेरिटोरियल वाटर या नेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगे। वहां पर देयर आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इट इज द फोर्थ एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड, आपको ये वर्ड याद रखना है, 200 किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये वर्ड आपको याद रखना है। इससे बाहर के जितने भी रिसोर्सेज हैं दे ऑल बिलोंग टू ओपन ओशियन। अगर आप यहाँ से कुछ निकालना चाहते हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन परमिशन किसकी लें? ऑफ सम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, देन यू आर एबल टू यूटिलाइज देम। तो इनका कोई पर्टिकुलर एक कंट्री मालिक नहीं है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम इंटरनेशनल रिसोर्सेज। यू टेक परमिशन फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूशन एंड यू कैन ऑब्टेन सर्टेन थिंग्स फ्रॉम देयर। नाउ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन बनता है तो वो इसी में से बनता है। जनरली आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो उसे आपको ध्यान रखना है। लेट्स सी व्हाट आर दे। देयर आर 4 टाइप्स। द फर्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्स। द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन। यहाँ पे जो वर्ड है रीजन, इसका मतलब निकलता है एरिया। वह रिसोर्स जो किसी एरिया में मिलता है, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। यूटिलाइज वर्ड का मतलब निकलता है अभी हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं। दे आर टर्म्ड एज पोटेंशियल रिसोर्स। सिंपली आप समझिए, सोलर एनर्जी भले ही अवेलेबल है पर हर जगह इसको यूज नहीं किया जा रहा है। दे आर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड। इसका एक रीजन हो सकता है, हमें लगता है कि वो प्रॉपरली डेवलप
नहीं हुए हैं फॉर द प्रेजेंट यूज, बट दे हैव द पोटेंशियल टू फुलफिल आवर नीड्स। हमें पता है कि फ्यूचर में हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करेगी वो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये चीज़ें कर सकती है। तो हम उनको अभी यूज नहीं कर रहे हैं, उनके थोड़े डेवलपमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर पोटेंशियल रिसोर्स। Example is given here, wind and solar energy in the states of Rajasthan and Gujarat. They are not wholly used here, that's why they are termed as potential resource. इन 3 पॉइंट को याद रखना है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन फॉर्म करेगा। Developed resources. The resources which are surveyed for their quality and quantity for utilization. हमें उनकी क्वालिटी भी पता है और क्वांटिटी भी पता है, हमें पता है उनको किस तरीके से यूज किया जाए। The development of resources depends on the technology and the level of their feasibility. कोल माइंस जितनी भी है, ऑयल वेल जितने भी हैं, वो डेवलप्ड रिसोर्स के रूप में आते हैं। हम उनका प्रेजेंट में विद द लेटेस्ट एंड फुल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और हमें लगता है देयर आर नो फर्दर चांस ऑफ डेवलपमेंट इन देम। ऐसे रिसोर्सेज डेवलप्ड कहलाते हैं। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक वर्ड को आप सिंपली समझिए कि जब किसी भी रिसोर्स में कैपेसिटी हो कि उसकी वह हमारी एनर्जी नीड को पूरा कर सके, पर हमें ये पता नहीं है इसको यूज कैसे किया जाए, तो वह रिसोर्स स्टॉक कहलाता है। लेट्स सी सम रिसोर्सेज प्रेजेंट इन नेचर, दे हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई आवर डिमांड, बट वी डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ओहो, टेक्नोलॉजी ही नहीं है। याद रखिए, नो हाउ, पता ही नहीं है कि हम उन्हें कैसे यूज करें, देन इट विल बी टर्म्ड एज स्टॉक रिसोर्स। एग्जाम्पल, वाटर एज अ फ्यूल। दोस्तों, आप जानते हो कि पानी का जो केमिकल फार्मूला होता है H2O होता है। अगर इसके 2 मॉलिक्यूल्स को ढंग से तोड़ा जाए तो 2 तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनेंगे और 1 ऑक्सीजन का बनेगा। जो ऑक्सीजन है ये कंबशन के प्रोसेस को सपोर्ट करती है और हाइड्रोजन है ये फ्यूल का काम करेगा। पर हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि हम इसको एफिशिएंटली तोड़कर यूटिलाइज कर सके। वरना तो बढ़िया आप पानी डालिए अपनी फ्यूल टैंक में और चलते बनिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल। Now the second is desalinization of ocean water. Ocean water में salt होता है। Salt को separate करना it is a very complicated process. लेकिन हमें अगर कोई easy process मिल जाए, then drinking water की जो problem है वो पूरे world में और coastal areas में solve हो सकती है, but we do not have technical know-how. Now we may be able to do so with the advancement of science and technology. तो अभी तो आप इसको फ्यूचर पे छोड़िए कि भविष्य में हम इनको यूज करेंगे। Now there is a subset of a stock resource that is known as reserve resource. What is it? You have to remember the 3 points. Reserve resources अभी आप उनको यूज नहीं कर रहे हैं। You can use, but you are not using. They are reserve resource. So they are the subset of stock resource. B point says they can be put in use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. Now they can be used for meeting the future requirement. Example, river water in dams can be used for generating hydroelectricity. हमें पता है कि जब हम थर्मल पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, हम
न्यूक्लियर पावर से भी कर रहे हैं, तो हर जगह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो किन्हीं किन्हीं एरियाज में अगर डैम है तो भी वह रिजर्व रिसोर्स हो सकता है। बट प्रेजेंटली इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। बहुत ही इसका लिमिटेड यूज हो रहा है। इट कैन बी यूज इन फ्यूचर। सो 1 मार्क क्वेश्चन यहां आपका बनेगा, व्हाट इज रिजर्व? दैट इट इज द सबसेट ऑफ स्टॉक रिसोर्स। ये जो 4 रिसोर्सेज आपने डेवलपमेंट के बेसिस पे पढ़े हैं, प्लीज लर्न इट, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। Now, the rest of the chapter will be discussed in the second part. Thank you. Goodbye. Jai Hind.